Hello, hello friends. So students, good morning. Today, my topic is elongation due to the self-weight, right? Elongation due to the self-weight and stress due to the self-weight. So here, there is you can say there is two types of the cases are there. One case is for the prismatic bar where the area is constant, and second case is for this conical bar where area is not constant. So first of all, I will discuss the elongation. First of all, elongation of prismatic bar. So you can say elongation of prismatic bar due to self-weight. Elongation of prismatic bar due to self-weight. First, I will consider this. So, first of all, prismatic bar क्या है? What is prismatic bar? As I have already discussed with you, prismatic bar means where the area is constant. तो क्या होगा prismatic bar में? Prismatic bar means यहां पे क्या होगा? Area is constant, right? जो आपका एरिया होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. Whether the prismatic bar is the rectangular, circular in shape, rectangular in shape, or the circular in shape. But here you can say that the area should be constant, right? तो जहां पे क्या होना चाहिए? एरिया कांस्टेंट होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इलोंगेशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार की इलोंगेशन ड्यू टू द सेल्फ वेट, कि अगर सेल्फ वेट हो, सेल्फ वेट के कारण इसकी इलोंगेशन हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं, हाउ वी कैन फॉलो द प्रोसीजर, हाउ वी विल टेक इट, इसको आप समझिए. तो इसमें प्रिज्मेटिक बार में क्या है? आपका एरिया कांस्टेंट है, तो मैंने प्रिज्मेटिक बार लिया आपका जिसमें, एंड यू कैन से हियर द एरिया शुड बी कांस्टेंट, राइट? तो इसमें एज आपको पता है कि व्हाट इज देयर, P is the internal force, right, which is acting on the bar. A हम ये ले लेंगे, A is the area of the prismatic bar, right? तो जैसे ये आपका this is your prismatic bar, right? So this is your prismatic bar. You can say A is the area of the bar. E, that is also constant, that is Young's. E is Young's modulus of elasticity, right? And actually we have considered the bar like this. ये आपकी बार है and it is fixed at one end, right? So the prismatic bar is there. You can say that it is fixed at this end, right? एक end से fixed है and it is like this. E is the Young modulus of elasticity, right? can say P is the internal force, right?
क्या होगा आपका, P आपका इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स, राइट. So as you know that in case of and there is one more important property, actually there is one more important property which is called the specific weight. Gamma is the specific weight of the material. Gamma is the specific weight of the material, right? So we have considered it. We have considered the bar whose one end is fixed, right? You can say suppose this is your one end, this is fixed at A, whose one end is fixed and it is like this. So prismatic bar है तो naturally क्या होगा, जो इसका area है वो constant है, तो I have taken A is the area of the bar, E is the Young modulus of elasticity of the bar, P is the internal force, right, force, and gamma is the specific weight of the material, right? ये जो मटेरियल हम यूज करेंगे what is the specific weight. So this is, you can say specific weight क्या है, this is the property of the material. As in case of steel you can say steel के केस में जो गामा होगा that is your the 77 kilonewton per meter cube, right? This is your for steel. तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, राइट. तो अब हमने क्या निकालना है, इसका इलोंगेशन निकालनी है इसकी प्रिज्मेटिक बार की. मैंने क्या किया, कंसिडर ए बार ए बी, मैंने एक बार कंसिडर की ए बी, राइट, whose one end is fixed. मैंने इधर ऊपर से इसका एंड फिक्स कर लिया और नेक्स्ट एंड इज फ्री. अब जो गामा है आपका, फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट. आपको पता होगा स्पेसिफिक वेट आपका गामा जो है, स्पेसिफिक वेट क्या है, दैट इज weight per unit volume. Specific weight is weight per unit volume, right? Specific weight क्या है, weight per unit volume. तो weight आप अगर आप कहते हैं m into g divided by b, और m into b क्या होता है, rho. So this is equal to rho into g, right? तो specific weight आपका क्या हो गया, rho into g, where rho is the density, rho is the density, right? And this is equal to m upon v. तो ये सारे पैरामीटर्स आगे जो हमने पैरामीटर्स जहां पे यूज करने थे, ये सारे पैरामीटर्स हमने ले लिए हैं. So these are all the parameters which we will use here. अब now we will come to the questions. हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, हमें इसका इलोंगेशन निकालना है, राइट. तो देखिए जो आपने आज तक जो पीछे जितने भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की हैं, वहां पे वॉट एवर दे योर P is constant, means internal force is constant, and when P is constant तो हम क्या कौन सा फार्मूला यूज करते थे, चेंज इन लेंथ. तो चेंज इन लेंथ, राइट, change in length delta L, this is equal to P into L upon AE, right? This is, here P is constant, but in this case you have seen that your P is not constant, so we cannot directly use the solution, right? आपका P constant नहीं है, internal force constant नहीं है. Now the question is how we can say our P is not constant, right? If the bar is like this, right? तो आप इसका P constant क्यों नहीं है in case of self weight, इसका P constant क्यों नहीं है, that first we will see and find out why its P is not constant. यार देखिए आप, suppose if you will take the section this, right? तो मैं एक section ले लेता हूं, this is your section number 1 है ना, ये आपकी section 1 है. I have taken the section here. So इस section के ऊपर if I will say that calculate the internal force on the section, this is your section 1 you can say, this is your section 1 and calculate the internal force on section 1. It is either upward from the section this weight, or it is the weight below the section 1, right? Either it is the weight
above the section or weight below the section. Now, if we will consider the weight above the section, so it means that अगर मैं ये लेता हूं जहां पे एक रिएक्शन भी होगा because it is a fixed end. So if I will take the weight above the section, तो हमें क्या करना पड़ेगा? Sorry, if I have to take the internal force, तो अगर मैं above section लूं, एक तो इसका क्या होगा? J वाला वेट होगा, total weight plus reaction. But here I don't need the reaction. जहां पे मुझे रिएक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो इसका इंटरनल फोर्स होगा, that internal force we will take self weight below the section, right? हम क्या करेंगे? जो below का section होगा वो हम self weight लेंगे. तो ये आपका below the section था, तो मैंने self weight इसके नीचे ले लिया, right? तो naturally इस section के नीचे जो self weight होगा, that is the internal force of this. Now you understand this. अगर मैं ये हो गया first section 1 internal force. If I will take another section 2 here, अगर मैं एक section O2 को लेता हूं, तो मुझे बताइए जो इसका आपका internal force होगा, that is the weight below the section 2 means this weight, this total weight, right? So here you will see that weight below the section 2 that is different than that of the weight below the section 1. So it means that internal force on the section 2 is different, internal force on the section 1 is different, and if I take lot of sections like this here, so you can say that the weight below of each and every section is different, or you can say the self weight of this at every section is different. So when the weight below at every section is different, it means that the internal force at every section is different. So you can say that the internal force is not constant in this case. In this case, the internal force is not constant, and when the internal force is not constant, then how? So it means that we will not use this relation for calculating the change in length. तो J relation हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, करेंगे चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए. आई थिंक जहां तक आपको क्लियर हो गया. नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम सेल्फ वेट के केस में इंटरनल फोर्स कैसे निकालेंगे, कैसे इसकी इंटरनल फोर्स हर सेक्शन के ऊपर वेरी करेगी, डिफरेंट होगी, चेंज होगी. जो आपका P है वो कांस्टेंट नहीं होगा. तो ये चीजें हमने अभी जहां पे एक्सप्लेन किया, तो हमने इस चीज को रूल आउट करने की कोशिश की. वी हैव रूल्ड आउट दैट वी विल नॉट यूज दिस रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द चेंज इन लेंथ ऑफ द प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू द सेल्फ वेट. राइट हमने this we have ruled out that we will not use this relation because here in this case P is not constant. P varies with each and every section. P is different, right? P means internal force is different. P is not constant. Internal force is not constant. So we will not use this relation, right? Now you understand. Next one. Just see here. So I think up to this point, this is clear to you, right? So again, I will just read it. I have taken the prismatic bar, and its one end is fixed. At one end is fixed, and the other end is free. Suppose I am not written here. I will take the L is the length of the bar also. So L is the length of the bar, A is the area of cross section, E is the Young modulus of elasticity, and P is the internal force, right? So gamma, one property I have taken here, that is very important property. You can say gamma is the specific weight of the material, right? So मैंने क्या किया कि specific weight of the material that I have taken here. तो इस तरीके से हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है elongation of the prismatic bar due to the self weight. ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. Our objective is to calculate the elongation of the prismatic bar due to the
the self weight. This is my objective, right? So change in length I have to calculate, that is PL upon AE. But here you have seen that the E is constant, so I am using this relation. But in case of this prismatic bar, and where I am calculating the elongation due to the self weight, so here you can say your the P, the value of the internal force is not constant. ये मैंने आपको डिटेल में करके बताया कि how the values of the internal force at different section is different, right? At a different section of the prismatic bar, due to the self weight, the value of the internal force is different at every section. So this is very important point कि जो prismatic bar होगी self weight के कारण उसका जो internal force है at every section there, the value of the internal force is different. तो जब वैल्यू आपकी इंटरनल फोर्स की डिफरेंट होगी एट एवरी सेक्शन ऑफ द बार, सो इट मींस दैट योर पी इज नॉट कांस्टेंट. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? आपका पी क्या है? कांस्टेंट नहीं है, राइट? तो इसलिए क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे. अगर मैं कहूं कि अगर मैं ये सेक्शन लेता हूं जहां पे एट दिस सेक्शन मींस एट द एंड ऑफ द बार, एट द एंड ऑफ द बार जो आपकी इंटरनल फोर्स होगी एट द एंड ऑफ द बार, इंटरनल फोर्स P क्या होगी आपकी? 0 होगी. क्योंकि अगर ये सेक्शन लेता हूं मैं जहां पे एट द एंड ऑफ द बार, इफ आई विल टेक द सेक्शन दिस वन, तो जहां पे तो वेट है नहीं, नो वेट, सो देयर इज नो वेट ऑफ दिस prismatic bar. The internal force at the end of the bar is 0. And if I will consider the internal force at the top of the bar, so that is the total weight of the prismatic bar. So you can say तो internal force जहाँ पे top में क्या होगी? Maximum होगी. Internal force is maximum, right? At the top of the bar. You understand this point? तो ये चीज आपको सभी क्लियर होगी. Now just we will see what the procedure we will follow to try the equation. तो जहाँ पे देखिए आप इसको उठा लीजिए. So मैं एक द्वारा prismatic bar अच्छा से ड्रा करता हूँ. Suppose this is your prismatic bar of the constant area. The area of the bar is constant, right? It is fixed at one end. तो ये जो आपका ये वाला एंड है जहां से क्या है? फिक्स है. So it is fixed at one end and other end is free, right? तो इसका जहां से और जहां तक जो लेंथ है वो आप कंसिडर करिए L, राइट? तो एरिया आप इसका ले लीजिए. एरिया आपका इसका क्या है? मैं कहता हूं कि एरिया is equal to A. A is the area of the bar. L is the length. बाकी वही चीजें हैं. E is the Young modulus of elasticity, right? And gamma is the specific weight of the material. तो अगर आपने को नोट करना है तो लिख दीजिए, राइट? जहाँ पे लिख लेंगे L length of the bar, E is equal to Young's modulus of elasticity. A is cross sectional. A is cross sectional area of the bar, right? And gamma is equal to, gamma क्या है? Gamma is equal to specific. Gamma is equal to specific weight of the material
equal to weight per unit volume. This is equal to weight per unit volume, and this is also, you can say, weight per unit volume. This is equal to rho into g. So these are the parameters here. अब देखिए इस इक्वेशंस को, वो विल ट्राई दिस इक्वेशन. देखिए मैं एक आई कंसीडर वेरी स्मॉल piece of the ball, very small piece of the ball. I will consider very small piece of the ball, right? Consider very small piece of the ball, right? ये आपका piece है, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द पीस, लेंथ ऑफ द पीस आपकी क्या है, dx है, राइट? स्मॉल पीस की लेंथ क्या है, dx है, राइट? और तो ये जो आपका होगा, इसमें देखिए दिस इज वेरी वेरी स्मॉल पीस ऑफ द स्मॉल पीस. आई हैव टेकन वेरी वेरी स्मॉल पीस ऑफ द बॉल whose length is dx. This length is so small, you can say that the internal force here and the internal force here, in both the cases internal force is constant, right? जहां पे क्या होगा, internal force constant होगी. और J मैं कह सकता हूं कि J आपका जो है, this is at distance x from here, right? जो मैंने ये small piece लिया बार का, this is at a distance x from the free hand. Its length is dx. And its length is so small, you can say that the internal force at this end is same. There is no change in that because we have taken a very small length, right? Now, अब आपको पता है कि अगर आपने इंटरनल फोर्स निकालना है, तो इंटरनल फोर्स क्या होगा, ये इसका, ये जो आपने छोटा सा बार लिया, व्हाट इज द इंटरनल फोर्स ऑफ दिस, राइट? सो इंटरनल फोर्स क्या होगा, इंटरनल फोर्स, ये आपके जैसे ये बार आया था, दिस इज, यू कैन से दिस इज योर स्मॉल बार, राइट? दिस इज योर स्मॉल बार. ये इंटरनल फोर्स P इधर है, P इधर है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल फोर्स. तो इंटरनल फोर्स जो होगा, दैट इज वेट बिलो द बार. वो क्या होगा, वेट बिलो दिस स्मॉल स्ट्रिप जो मैंने लिया है, वेट बिलो द स्मॉल स्ट्रिप, दैट इज द इंटरनल फोर्स. तो इंटरनल फोर्स क्या होगा, वेट बिलो द स्मॉल स्ट्रिप. इसको हम किस तरीके से लेंगे, सो इंटरनल फोर्स, यहां पे लिखिए इंटरनल फोर्स. सो इंटरनल फोर्स क्या होगा इसमें, दैट इज मीन्स इंटरनल फोर्स इसमें क्या होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, राइट? सो इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम. सो दिस इज इक्वल टू गामा. व्हाट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द स्पेसिफिक वेट. This is equal to gamma into, if A is the area, तो A क्या होगा, ये आपका एरिया रहेगा, because the area is constant. A is the area and x is the distance, so this is volume. तो यह क्या आएगा, gamma AX. So internal force is your gamma AX. You understand this point? Internal force क्या है, gamma AX. Now you put this value gamma x in that equation, delta L is equal to PL upon AE. तो इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं हम. तो जहां पे क्या था, ये P क्या था, अब लिखे हम, P is the internal force acting on the small piece. P is equal to the internal force acting on the small piece at a distance x
फ्रॉम द, अगर मैं इसको सी लिख लेता हूं, राइट, ये आपका ए लिख लो, फ्रॉम सी, राइट। तो पी क्या है आपका? इंटरनल फोर्स है। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनल फोर्स क्या होगा। व्हाट इज योर इंटरनल फोर्स? इंटरनल फोर्स क्या है? दिस इज इक्वल टू द वेट बिलो द स्मॉल स्ट्रिप, राइट। इंटरनल फोर्स क्या है? वेट बिलो द स्मॉल स्ट्रिप, राइट, यही होगा। अब वेट बिलो द स्मॉल स्ट्रिप क्या होगा? वेट बिलो द स्मॉल स्ट्रिप क्या होगा? दिस इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू द टोटल वॉल्यूम, राइट। सो वेट अपॉन वॉल्यूम, ये मैंने अभी तो करके बताया, दिस इज इक्वल टू गामा वेट अपॉन वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू वेट पानी और वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वेट, दिस इज इक्वल टू गामा इनटू ए इज द एरिया ऑफ दिस, इसमें जहां पर भी ए ही होगा, ए इज द एरिया एंड एक्स इज द डिस्टेंस, दिस बिकम्स द, क्या होगा ये आपका बढ़ गया इंटरनल फोर्स। सो दिस इज योर गामा ए एक्स, ये आपका आ गया इंटरनल फोर्स। You understand this point, gamma AX. Now you substitute in this relation. तो change in length क्या होगा? What is the change in length? तो change in length delta L, this is equal to PL upon change in length of small strip, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू P क्या है आपका? व्हाट इज P? ये भी निकाला मैंने, गामा इंटू A इंटू X, राइट, gamma into A into X. This is your internal force. What is L here? L is your dx, right? इसका मैंने लेंथ कितना बताया था? स्मॉल स्ट्रिप का लेंथ कितना था? That is dx and A into E. A और A कैंसिल हो गया, right? So this becomes gamma into x into dx upon E. This is for the small strip. And if I have to calculate the elongation of whole of the bar, तो मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि ये जो बार है आप इसको कंसिडर करो, there is infinite number of small strip. It is made up of the infinite number of the small strip. तो अगर हमें टोटल इसका चेंज इन लेंथ निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब यहां पर मैं एक लिख देता हूं, सो टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ होल बार। अगर मैं होल बार का लेना है तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to L R X dx upon E, right? So this becomes, this is equal to R L square upon 2E. So this is total change in length, where dot R means gamma L square upon 2E. This is the total change in length of the prismatic bar. जहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है? You understand? हर चीज आपको क्लियर है? क्या किया मैंने? I have taken the prismatic bar. Now to calculate the
इलोंगेशन, इक्वेशन ऑफ द इलोंगेशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार, मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप लिया बार के ऊपर एट द डिस्टेंस x फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम फ्री एंड, जो स्ट्रिप का लेंथ था, दिस इज सो स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल, यू कैन से इट्स लेंथ इज dx, द एरिया क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है, तो दैट आई हैव टेकन स्ट्रिप एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम हियर। अब मैंने क्या किया कि मैंने स्ट्रिप के ऊपर जो था स्ट्रिप का मैंने चेंज इन लेंथ निकाला, और जो चेंज इन लेंथ स्ट्रिप का निकाला तो टोटल मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मींस समेशन ऑफ ऑल इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो होंगी जहां पे, तो तभी ये बार बनेगी, तो मैंने उसको समेट किया। अब मैंने इसका चेंज इन लेंथ स्ट्रिप का निकालने के लिए क्या लिया, मुझे पहले क्या जरूरत थी, इंटरनल फोर्स निकालने की जरूरत थी, आई हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल फोर्स। तो जो सेल्फ वेट के केस में, जैसे अभी मैंने पीछे बताया आपको, सेल्फ वेट के केस में जो इंटरनल फोर्स होगी, जो भी आपकी सेक्शन होगी, इंटरनल फोर्स होगी वेट बिलो द सेक्शन। तो जैसे ये स्ट्रिप थी, तो इसका जो इंटरनल फोर्स होगी ये होगी वेट बिलो दिस सेक्शन, दिस आई हैव कैलकुलेटेड कि वेट बिलो दिस सेक्शन क्या हुआ, दैट इज द स्पेसिफिक वेट, मींस वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, ये आपका टोटल वेट आ जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, and weight per unit volume, this is called the gamma, weight per unit volume क्या है, this is called gamma, and total volume क्या होगा इसका, A is the area and X is the height, then total volume is gamma into A into X, ये आपका निकल गया। So this is your internal force. Now I said that this is a very small strip, so internal force is constant at both ends, जहां पर भी internal force same है, जहां पर भी same, right? So internal force is constant, so I use this relation and then integrate this from 0 to L, and I got this equation RL square by 2E. This is the change in length of the entire wire due to the self weight. You understand this? अब देखिए आगे इसका, so J आपका आ गया, इसको थोड़ा मिटा देंगे, आपका आ गया। So this equation are gamma L square upon 2E, so gamma L square upon 2E, this is the equation of prismatic bar. This is the equation of change in length of prismatic bar due to self weight, right? Where ये लिखना है गामा क्या है, गामा आपका स्पेसिफिक वेट है, एल इज द लेंथ एंड ई इज द जंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन थी आपकी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वेट, ये जो इक्वेशन आपने चेंज इन लेंथ निकाली, ये निकाल लिया आपने स्पेसिफिक वेट के केस में। तो इफ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, वहां पे स्पेसिफिक वेट नहीं दिया होगा, बट आपको क्या दिया होगा, वेट दिया होगा, वेट ऑफ द बार, वेट दिया होगा, टोटल वेट दिया होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो इस फॉर्मूला को हम टोटल वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हमने इक्वेशन आपकी टोटल वेट में लिखनी है, राइट, तो टोटल वेट में जो आपकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी,
देखिए आपको पता है कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू, स्पेसिफिक वेट क्या है, गामा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, दिस इज गामा, राइट। वेट per unit volume and this is equal to total volume, this is equal to gamma, this is your equation of this. तो अगर मैंने इसको वेट में कन्वर्ट करना है तो यू कैन से टोटल वेट, W आपका टोटल वेट है, तो ये क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, यही होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम। अब वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, दिस इज गामा। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, A is the area of the prismatic bar and L is the length of the prismatic bar, so you can say A into L, this is equal to W। तो जो गामा की वैल्यू है, therefore स्पेसिफिक वेट गामा क्या आएगा, W on A into L, right? So gamma is equal to W upon A into L. So therefore change in length in terms of total weight क्या फार्मूला होगा, डेल्टा L, ये था आपका RL square upon 2E। So this is equal to R means gamma L square upon 2E। तो गामा की जगह ये वैल्यू पुट कर लिया, क्या आएगा, W into L square upon A into L to E, right? So L and L, this is cancelled, so you can get the, this is equal to W into L to A E। So this is your equation in terms of total weight. This is your equation of the change in length of the prismatic bar due to the self weight, due to total weight। अगर आपने in terms of weight आपको equation चाहिए तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, WL divided by 2AE, and if the specific weight is given then it is equal to gamma L square upon 2E, right? You understand this? अब देखिए, now you see from this problem, and if you will compare this relation, मैं अगर इस रिलेशन को कंपेयर करता हूं, जैसे ये रिलेशन है आपका WL to AE, so compare this, so if you compare this relation, तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इस रिलेशन को इसके साथ गामा L square upon, if I will compare this relation with this P into L upon AE, right? तो देखिए ये जो आपका W/2 है, बाकी तो सब कुछ सेम है, LAE, तो ये आपका जो W/2 है, तो आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज ए पॉइंट लोड, है ना। ये जो P जो इसमें था, इसमें क्या था आपका, दिस इज पॉइंट लोड W/2, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, है ना। तो इलॉन्गेशन के केस में तो ये हो सकता है पॉसिबल, बिकॉज इलॉन्गेशन के केस में तो वी विल टेक इट, बट इफ यू हैव टू कैलकुलेट द सिग्मा, if you have to calculate the sigma means you have to calculate the stress, तो स्ट्रेस के केस में क्या होगा, सपोज करो, देखिए जैसे ये पॉइंट लोड है, तो मैं अगर इस तरीके से इसको कंसीडर करूं, ये नहीं तो बिटा लीजिए, तो अगर सपोज करो ये आपका बार है इस तरीके से, इफ योर बार इज लाइक दिस, राइट, W/2, राइट। तो अगर आप किसी भी सेक्शन के ऊपर मैं आपको कहूंगा आप इंटरनल फोर्स निकालिए इस केस में,
चाहे इस सेक्शन में निकालें, इस सेक्शन में निकालें, इस सेक्शन में निकालें, इस सेक्शन में निकालें, तो इंटरनल फोर्स इज सेम। इन दिस केस इंटरनल फोर्स क्या होगा आपका, योर इंटरनल फोर्स इज सेम एट एवरी सेक्शन, है ना। इंटरनल फोर्स क्या होगी, एवरी सेक्शन के ऊपर क्या होगी, सेम होगी। और अगर मैं सपोज ये आपका है, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें जो आपकी इंटरनल फोर्स है, अगर ये सेक्शन ले लें, ये सेक्शन ले लें, ये ले लें, कोई भी सेक्शन ले लें, तो इंटरनल फोर्स आपकी क्या होगी, इसमें सेम नहीं होगी। इंटरनल फोर्स इज नॉट सेम, मींस इंटरनल फोर्स इज डिफरेंट हियर, राइट। तो चेंज इन लेंथ का हम इन दिस केस निकाल सकते हैं। अगर हम ये WI2 लोड लेते हैं, चेंज इन लेंथ तो निकलेगा, बट स्ट्रेस वी कैनॉट कैलकुलेट। अब देखिए, अगर मैंने इसका स्ट्रेस निकालना है, सपोज इफ आई हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल फोर्स IF डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। स्ट्रेस क्या होगा, इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब इंटरनल फोर्स आपकी क्या है, व्हाट इज द इंटरनल फोर्स, तो देखिए, अगर मैंने नॉर्मल स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है, तो व्हाट इज द रिलेशन, ये भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंटरनल फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज ये आपका प्रिज्मेटिक बार है, दिस इज योर प्रिज्मेटिक बार, राइट। तो प्रिज्मेटिक बार है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल फोर्स हियर। सपोज करो आपको इसमें एक इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करना है एट द डिस्टेंस x, ए आपका एरिया होगा, है ना। तो इंटरनल फोर्स को दिया आपकी सेक्शन है XX, राइट। सो इंटरनल फोर्स क्या आ गया, टू कैलकुलेट the normal stress of the prismatic var due to self weight, right। तो सिग्मा क्या होगा, Pxx upon area below the section, right, below the area। तो Pxx क्या होगा, इंटरनल फोर्स क्या होगी इसमें, इंटरनल फोर्स क्या होगी, दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, यही वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम। सो दिस इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, दिस इज स्पेसिफिक वेट एंड टोटल वॉल्यूम V क्या होगा इसमें, A is the area, X is the length, that is RAX। So this is your क्या है, ये आ गया आपका इंटरनल फोर्स P। Now therefore sigma is equal to gamma A into X upon A, ये कैंसिल हो गया, so this is equal to gamma X। तो जहां पे आपने एक चीज देखी, दैट नॉर्मल स्ट्रेस दैट डिपेंड्स, गामा क्या होगा, यदि आपका क्या कांस्टेंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्स। तो जैसे जैसे इसका एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्या होगा, आपका जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस लेता हूं, एट दिस पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 0, तो देयरफॉर सिग्मा क्या होगा आपका, 0 होगा। और अगर टॉप लेता हूं मैं, जो पे इसकी लेंथ क्या है, L है, तो एट x इक्वल टू L सिग्मा इज इक्वल टू RL। तो जहां भी एक चीज आप नोट करेंगे कि जो आपका सिग्मा है, दैट वेरीज लीनियरली विद द लेंथ, दैट वेरीज
लीनियरली विद द लेंथ, ये लेंथ के साथ वेरी करेगा। मीन्स कहने का मतलब है ये इस तरीके से वेरी करेगा, राइट। That varies linearly with the length means J राइट, ये इस तरीके से वेरी करेगा, राइट। तो जहां पे क्या होगा, सिग्मा मैक्सिमम, सो दिस इज इक्वल टू गामा इंटू एल, और जहां पे होगा इस पॉइंट पे sigma minimum, this is equal to 0, right? So this is about your elongation of the prismatic path due to self weight। इसमें मैंने elongation भी आपको कैलकुलेट करके बताया और इसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी कैलकुलेट करके बताया। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू गामा इंटू एल। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए, राइट। तो जे आपका जहां पे पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। तो आप आगे देखिए इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट वी विल सी। तो नेक्स्ट आपका होगा फर्स्ट आपका elongation elongation of the conical var due to self weight, राइट। दूसरा हमारा है elongation of the conical bar due to the self weight, राइट। तो देखिए इसमें so elongation of the conical So this is the conical bar elongation this is the conical bar of length L, right? So here you have seen one thing, that in case of the conical bar, here the area is also not constant. There are the two conditions. First, you can say the weight is not constant, right? वेट भी तो आपका इंटरनल फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, बट उसके साथ साथ ही जो आपका
जो आपका कॉर्टिकल बार है, इसमें भी आपका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, राइट। दिस इज द डिफरेंस इन द प्रिज्मेटिक बार एंड द कॉनिकल बार। प्रिज्मेटिक बार में था जो आपका एरिया था वो कांस्टेंट था, बट इन कॉनिकल बार यू विल फाइंड दैट द एरिया इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, दैट वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। तो मैं कहता हूं इसका सपोज करो इसका जो बेस एरिया है, दिस इज कॉल्ड द बेस एरिया of the conical bar. This is equal to A. The base area of the conical bar is A, and the height of this is equal to L, right? E is the Young modulus of elasticity of the material, right? Gamma is the specific weight of the material. So these are the conditions, these are the parameters which we require there. अब देखिए कि इसमें क्या है, कि इसमें क्या कंडीशन आई कि जो आपका P था, आपका जो इंटरनल फोर्स था, सो इंटरनल फोर्स मींस पीबी इज नॉट कांस्टेंट, और दूसरा आपका एरिया इज नॉट कांस्टेंट। ये दो कंडीशंस जो है इसमें है कि आपका इंटरनल फोर्स भी कांस्टेंट नहीं होगा और आपका एरिया भी कांस्टेंट नहीं होगा। सो दीज आर द टू कंडीशंस आर हियर। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन द conical bar whose one end is fixed, this is called the base area and this is the height of the conical bar, you can say L is the length of the conical bar, right। तो अब हमें क्या निकालना है, we have to find out the elongation। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा स्मॉल, वो कहते हैं एक स्मॉल पीस, वी विल टेक ए स्मॉल स्ट्रिप हियर। तो आप एक स्मॉल स्ट्रिप ले लो, दिस इज अ स्मॉल स्ट्रिप, राइट। ये स्मॉल स्ट्रिप है आपका, सो दिस इज योर स्मॉल स्ट्रिप ऑफ दिस, राइट, जिसकी आप कह सकते हैं लेंथ आपकी क्या है, इसकी dx इज द लेंथ है, स्मॉल स्ट्रिप की लेंथ क्या है, dx, so dx is the length of the small strip, and right, and a dash is the area of the small strip। a dash क्या है, that is the area of the small strip। So I am just discussing this elongation of the conical bar due to the self weight। So consider the conical bar, right, whose base area is A, लिख देते हैं, base area of the conical bar is A, L is the length or height, you can say, of the conical bar, L is the length of the conical, L is the length of the conical bar, right? E is the Young modulus of elasticity and gamma is the specific weight of the material, right? तो मैंने क्या किया कि जहां भी मैं एक स्मॉल लेता हूं, एक स्मॉल एलिमेंट आई हैव टेकन हियर, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट which I have taken here, जिसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है इसकी, dx is the length, and a dash यहाँ पे लिख लीजिए dx length of the small element and a dash is the area of the small element which is constant, right? ये क्या है, which is constant। So these are the conditions I have taken here to calculate this। अब देखिए, so we have to first, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें चेंज इन लेंथ ऑफ द स्मॉल पार्ट कैलकुलेट करना है। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द
change in length of the small part. So this is your shaded portion, right? This is the shaded portion. तो अगर मैं कहूं कि इस जो आपने ये स्मॉल स्ट्रिप लिया, इसके ऊपर जो इंटरनल फोर्स है P, सपोज इंटरनल फोर्स P जो जहां पे एक्ट करेगी, इंटरनल फोर्स P इसके ऊपर, तो इंटरनल फोर्स P किसके बराबर होगी? इंटरनल फोर्स P विच इज एक्टिंग ऑन द स्मॉल स्ट्रिप, तो आप लिख सकते हैं P इज द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल स्ट्रिप, राइट? P क्या है? इंटरनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द स्मॉल स्ट्रिप। तो ये किसके बराबर होगी? इंटरनल फोर्स किसके बराबर होगी? P जो है किसके बराबर होगी? बताइए मुझे। P इज द इंटरनल फोर्स क्या होगी? वेट बिलो द स्मॉल स्ट्रिप, है ना? ये जो वेट होगा मींस वेट बिलो द स्मॉल स्ट्रिप, ये आपका इंटरनल फोर्स होगा इसमें, राइट? तो वेट बिलो द स्मॉल स्ट्रिप क्या होगा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द शेडेड पोर्शन, राइट? तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू गामा इनटू वॉल्यूम ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या होगा? A डैश, मैंने कहा है A डैश इज द एरिया एंड X इज द, जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या है? X है, राइट? सो X इज द डिस्टेंस। तो इसमें किस तरीके से आएगा? सॉरी, इसमें आपका शेडेड पोर्शन का हमने अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3, वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट, राइट? Or you can say this is equal to gamma 1/3 into A dash into X. So this is your internal force. You understand this? ये आपका क्या आया? Internal force. So now, what is the change in length of a small strip now? Change in length of small strip. Change in length small strip क्या होगा? डेल्टा L, ये फार्मूला PL upon A into E, right? Because I am taking the area, A is constant in case of small strip. तो इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए। व्हाट इज योर P? P is gamma 1/3 A dash into X. L is dx. L क्या है आपका? स्मॉल लेंथ क्या है? dx. एरिया क्या है आपका? A dash into E. ये कैंसिल हो गया। So this is equal to R into X dx P, right? Comma into X into dx, comma into X into dx 3E, right? This is the change in length of the small strip. And if you have to find out the change in length of whole of this conical bar,
तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से L तक। टोटल लेंथ क्या है, L है, हमने किसके ऊपर निकाला, x के ऊपर निकाला। एट डिस्टेंस x वी हैव टेकन अ स्मॉल स्टेप, तो उस वक्त आपका जो है चेंज इन लेंथ है r इंटू एक्स dx डिवाइडेड बाई 3e। तो यू कैन से तो आपका चेंज इन लेंथ of the whole conical bar due to self weight। So क्या करेंगे इसको, we will integrate it from 0 to L r x dx divided by 3e। r is gamma x dx divided by 3e। तो gamma is constant, 3 is constant, e is constant, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा that is L square by 2, right? So this is equal to r L square upon 6e। This is r L square upon 6e। You understand this? So this is the change in length in terms of your specific weight. This relation is a change in length in terms of your specific weight, means gamma. And if you have to calculate the change in length in terms of total weight के केस में कैसे निकालेंगे, सेम आप देखिए इसको। टोटल वेट के केस में जहां इसको चेंज कर देते हैं, टोटल वेट के केस में तो वेट आपका क्या होगा, वेट आपका क्या होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, राइट? वेट पर यूनिट वॉल्यूम into total volume। So weight per unit volume, what is this? This is gamma। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, अगर A इसका बेस एरिया है, L इसकी लेंथ है, तो टोटल कॉनिकल जो बार होगी आपकी, उसका टोटल वॉल्यूम होगा A इंटू L। कोई प्रॉब्लम इसमें, A इंटू L, गामा A इंटू L। So this is your W। Therefore gamma is equal to W upon AL। गामा W upon AL, कोई इसमें प्रॉब्लम, गामा आपका W upon AL। तो ये वैल्यू आप जहां पर पुट कर लीजिए, आप यू पुट द वैल्यू हियर। सो दिस इज इक्वल टू गामा की जगह W upon AL into L square into 6e। राइट? तो L और L आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका दिया आएगा W upon 6AE। So this is your equation of the change in length in terms of your this weight, right? In terms of your weight, this is the equation of change in length। You understand this? अब देखिए इसको आगे,
यहां पे थोड़ा सा मैं स्किप कर गया, गलत हो गया यहां से। ये वेट आपका आया, सो W इज इक्वल टू गामा एंड टोटल वॉल्यूम, दिस इज ए कॉनिकल शेप ना, मैं भूल गया, दिस इज ए कॉनिकल शेप आई जस्ट, तो यहां पे आपका आ गया 1/3 टू A इंटू L, राइट, 1/3 A इंटू L, therefore 3W upon AL, 3W upon AL, this is equal to gamma। तो अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ये गलत हो गया, तो गामा की जगह ये आपका आ गया, दिस इज इक्वल टू 3W अपॉन AL, W upon AL into L square upon 6E, right, 3 2 A और सॉरी डॉट A, L और J cancel, so again this is equal to WL upon 2AE, so this is the equation, this is the equation of your this elongation of the conical bar due to self weight. Now here one thing you have noticed that in case of prismatic bar as well as in case of your this conical bar, you will feel that you just see here that the equation of the elongation in terms of weight is same. There is no difference there, because in the prismatic bar you can say elongation that is equal to WL upon 2AE. In the prismatic bar the elongation, the equation of the elongation is WL upon 2AE, and in case of this the equation is WL upon 2AE. So the equation is same, but the problem is if I will consider this is W/2 point load, so I cannot consider the point load here, because I cannot consider the point load on this point, because this is a tip of the you can say cone, and the tip of the cone is having a very small base area, you can say, so it will break down. So otherwise everything is same. So I think आपको ये टोटल क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे निकालना है। इसमें सिर्फ आपको एक डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम को आपके एज एक शेडेड ट्राइंगल शेप में, कॉनिकल शेप क्या है, ट्राइंगल शेप है, इसमें सिर्फ वॉल्यूम का जो इक्वेशन होगा वो चेंज होगा, रेस्ट जो सारा प्रोसीजर है दैट इज एवरीथिंग इज सेम। और वॉल्यूम इस केस में क्या होगा, जो शेडेड पोर्शन है या जो आपका कोन है दैट इज 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। सो दिस इज द elongation of the conical bar due to the self weight. Now next is stress on the conical bar. Just see here. अब देखिए आगे, now to find the stress sigma on
द कॉनिकल बार ना। स्ट्रेस इसमें हमें फाइंड आउट करनी है, किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, टू कैलकुलेट द स्ट्रेस पहले फिगर हम ड्रा कर लेते हैं। So क्या करेंगे, लेट टेक ए सेक्शन दिस, suppose this is a section XX and we have to calculate the stress. So you can say that take a section at a distance x from the lower end. हम क्या करें, एक सेक्शन हम लोअर एंड से ले लें हम। तो टू कैलकुलेट द स्ट्रेस है ना, टू कैलकुलेट द स्ट्रेस मींस पी एक्स, एक्स क्या होगा, इंटरनल फोर्स एट एक्स क्या होगा, दिस इज वेट बिलो द सेक्शन, वेट बिलो द सेक्शन, राइट। इस सेक्शन के बिलो जो वेट होगा, दिस इज इक्वल टू पी एक्स एक्स। तो वेट बिलो द सेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस शेडेड पार्ट, है ना, वॉल्यूम ऑफ द शेडेड पार्ट ना, वॉल्यूम ऑफ द। सो दिस इज आपका क्या होगा, गामा टू 1/3। अगर ए डैश इज द, ए डैश क्या है, ए डैश इज द एरिया ऑफ दिस इज ए डैश इनटू एक्स, राइट। So this is your this weight below the section, right? Weight below the section, this is equal to this. Now, अब sigma क्या होता है? What is your sigma? That is P upon A, means internal force upon A. तो इसमें होगा A क्या है, A डैश होगा इसमें, बिकॉज आई हैव टेकन द एरिया A डैश। A तो एरिया मैंने इसको जो उसका बड़ा बेस था इसको कंसिडर किया है। सो मीन्स गामा टू 1/3 इंटू A डैश इंटू एक्स अपॉन A डैश। A डैश ऊपर A डैश कैंसिल हो गया। So this is equal to 1/3 R into S. 1/3 R into S. So this is your sigma. Here you will see also, जहां पर भी देखिए जो सिग्मा है, that is the function of x, means 1/3, this is constant, gamma that is a specified, this is constant। और तो इसका मतलब ये हुआ कि एट x इक्वल टू 0, अगर हम x 0 लेते हैं, एट x इक्वल टू 0 सिग्मा इज 0, एट x इज इक्वल टू L sigma is sigma max। So it means that this stress that will changes linearly, right, that will change linearly like this, ये भी इसी तरीके से चेंज होगी, right, that will changes linear like this।
तो जे आपका अगर जीरो है, जहां पे स्ट्रेस आपकी जीरो होगी एंड इस पॉइंट के ऊपर आपकी स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सिग्मा मैक्सिमम, राइट। सो दिस इज द स्ट्रेस। अब एक चीज आप देखिए, मैं आपको एक जहां पे आई वांट टू शो यू वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड हियर। तो इसको बिठा लेते हैं। ये आपने कर लिया आपका पूरा, ये आपका स्ट्रेस आ गया 1/3, राइट, 1/3 और x। दिस इज द स्ट्रेस एट दिस सेक्शन। So at every section you can calculate the stress here, right? 1/3 gamma into x. There is a very important concept which I want to show you. देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा इन प्रिज्मेटिक बार क्या था, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट इज चेंज इन लेंथ, क्या फॉर्मूला था इसका, so change in length gamma L square upon 2e and sigma is equal to gamma into x, right? And in conical bar delta L is equal to gamma L square upon 6e and sigma gamma by 3 into x, right? So if you will see the equation of change in length as well as the sigma in case of prismatic bar and in case of conical bar, you will notice one thing here, that these equations are without the area. ना ही आपको जहां पे एरिया दिखाई देगा, ना ही जहां पे एरिया दिखाई देगा। जैसे कि आपको पता है, जैसे डेल्टा एल, जो आपका डेल्टा एल होता है, दिस इज इक्वल टू पी इंटू एल ए अपॉन ई, राइट। और जो सिग्मा आपका होता है, दिस इज इक्वल टू पी अपॉन ए। सो यू कैन से दैट चेंज इन लेंथ एज वेल एज द स्ट्रेस, both they depends upon the area, right? In case of other axial loaded member, they both depends upon the area, but in case of prismatic bar and conical bar and the elongation which is due to the self weight, in that condition you will find that change in length as well as the stress, in both the equation you will see that the area is missing. In conical bar also area is missing in both the equation. So it means that elongation due to the self weight in case of prismatic bar or in case of conical bar, area of that bar has no importance. उसका एरिया का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इलोंगेशन जो आपकी होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द एल लेंथ, और सिग्मा भी आपका क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्स लेंथ, राइट। तो ये आपका लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, बट एरिया के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। इन केस ऑफ एरिया दीज थिंग्स आर इंडिपेंडेंट, राइट। So this is a very important concept to just understand. तो जहां पे आपने देखा
और जे आपका दोनों डेरिवेशन एज योर दिस प्रिज्मेटिक बार का चेंज इन लेंथ का और स्ट्रेस का, एज वेल एज कॉनिकल जो बार है उसका स्ट्रेस का और चेंज इन लेंथ का जो डेरिवेशन है. दिस इज कंप्लीट नाउ. सो आई विल टेक 1-2 प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस एंड जस्ट सी हियर नाउ. So this is your numerical. ये आपका एक numerical कर लेते हैं हम. आप जस्ट देखिए numerical क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए. Steel bar A, B, C. This is your steel bar A, B and C. 16 meter long. ये कितना लंबा है? That is 16 meter long. This is given. So this is your 16 meter. Total 16 meter long है आपका. Having cross-sectional area 8 meter square. So cross-sectional area is also given. A आपका दिया है 8 meter square. Cross-sectional area is given. Length is given. And the weight W. This is given as 40 Newton. Right? Modulus of elasticity of the bar material is 200 GPa. So E is given as 200 GPa. तो इसको मेगापास्कल में हमें कन्वर्ट करना है तो 200 into 10⁻³ MPa, right? So this is given. अब हमें निकालना क्या है? What we have to calculate? We have to calculate just here deflection at point B and C, means change in length at point B and C. हमें point B के ऊपर जहां पे और जहां पे change in length निकालना है, right? तो first of all I will just calculate the change in length of point C, right? So you can say first I calculate deflection at point C. देखो जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे तो वहां पे मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर दिया था कि अगर आपको चेंज इन लेंथ किसी एंड के ऊपर निकालनी है, किसी पॉइंट के ऊपर निकालनी है, तो जो दूसरा पॉइंट होगा उसका वो क्या होना चाहिए? वो फिक्स होना चाहिए, राइट? तो सेकंड पॉइंट दैट शुड बी फिक्स. सो मैं कह सकता हूं दिस इज योर फिक्स्ड एंड. ये आपका जो था इन द न्यूमेरिकल दिस इज योर फिक्स्ड एंड, राइट? तो चेंज इन लेंथ ऑफ C that is equal to change in length of C. This is equal to delta LAC, right? This is equal to delta LAC. This is the change in length of this point delta LAC, right? तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए डेल्टा LAC. This is how much? Delta LAC. So this is delta LAC. This is equal to deflection at point C. तो उसको कैलकुलेट कीजिए. Therefore, delta LAC. This is equal to ये फॉर्मूला क्या है? P into L नॉट. तो इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा. ये सेल्फ वेट का न्यूमेरिकल है तो उसमें क्या फार्मूला दिया था? W into L 2AE, है ना? This is W into L 2AE, right? Because this is the problem of the self weight and 40 Newton weight. उसने बताया कि 40 Newton weight is the weight of the bar, right? तो ये सेल्फ वेट की प्रॉब्लम है तो इसमें फार्मूला क्या था? WL/2AE. तो इसमें चेंज इन लेंथ आपका बड़े आसानी से निकल जाएगा. तो W इज क्या है? इसमें आपका 40 है. What is your L? L इसमें क्या है? What is your L? That is 1600. 2 into A. What is A? That is 8. What is E? 200 into 10⁻³. So just calculate this. How much? Calculate this.
कितना आएगा ये? So this is equal to how much? This is equal to 0.2 mm. So this first part of the problem is all that you have to calculate the deflection at point C. तो deflection at point C हमने ये calculate कर लिया। अब देखिए जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट क्या था इसका कि हमें डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालना है। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालने के लिए आप सोच रहे होंगे कि अगर डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालना है, ये आपका फिक्स एंड है, जहां से मैं डिफ्लेक्शन एट बी निकालूंगा तो नेचुरली जो लोड होगा इसके ऊपर ये हाफ लेंथ हो जाएगी 8 मीटर, राइट, और जो लोड होगा ये 40 की जगह मैं 20 ले लूंगा और इसको मैं डेल्टा एल ए वी करके इसको निकाल लूंगा। बट द प्रॉब्लम इज दिस इज रॉन्ग, दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। इसमें क्या कंसेप्ट है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जब हमें डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालनी है, राइट, तो एक तो आपका जो डिफ्लेक्शन जो इसकी पॉइंट बी की होगी, एक होगी आपकी चेंज इन लेंथ ए बी, राइट, जो आपका लोड इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर पॉइंट बी के ऊपर लोड एक्ट कर रहा है, तो चेंज इन लेंथ ऑफ द ए बी। और दूसरा जो पॉइंट बी की डिफ्लेक्शन होगी, ये जो आपको पॉइंट बी के नीचे जो इसका सेल्फ वेट का लोड है, ये भी तो इसको नीचे को पुश करेगा, ये भी इसको डिफ्लेक्ट करेगा, राइट, ये भी तो इसको डिफ्लेक्ट करेगा। तो पॉइंट बी की जो डिफ्लेक्शन होगी दैट इज चेंज इन लेंथ ऑफ द ए बी प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ द बी सी, राइट, चेंज इन लेंथ ऑफ द ए बी प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ द बी सी। नाउ यू सी दैट हाउ, इसको दोबारा कंसेप्ट को मैं क्लियर करता हूं, इसको ध्यान से सुनिए आप। तो इसमें एक कंसेप्ट लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना। इसमें क्या होगा कि हमने निकालना है डिफ्लेक्शन, इधर ऊपर लिखते हैं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, राइट, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, राइट। सो जहां इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लिखिए, इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं लिखूंगा कंसेप्ट। तो देखिए डिफ्लेक्शन at point V is not due to only the weight of AV but also due to the weight below the point B, that is due to PC। समझ आ गया ये? तो ये किस किस्म की इसकी फिगर बनेगी, ये इस तरीके से बनेगी इसकी फिगर। This is your point B, this is your point B, this is your A, है ना, this is your point B and this is point A। हमें क्या निकालना है, पॉइंट बी की डिफ्लेक्शन निकालनी है। तो उसने लिखा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, ये सिर्फ जो वाला वेट है इसके ऊपर जो एक्ट कर रहा है पॉइंट बी के ऊपर, जो ए बी पॉइंट के ऊपर जो वेट एक्ट कर रहा है, ये सिर्फ इसके द्वारा नहीं होगी, बट ये किसके द्वारा भी होगी, जो आपका ये वेट बिलो द पॉइंट बी है
means weight of the BC. और weight of the BC I will assume it is your point load, that is 20 Newton, right? 20 न्यूटन रहा ना, टोटल वेट था इसका 40 न्यूटन, तो 40 अगर 20 न्यूटन के हो गया और 20 न्यूटन के पॉइंट लोड हो गया, तो ये जो दोनों वेट है, बस ये जो वेट इसके ऊपर वाला था पॉइंट ए बी पोर्शन का, इसके साथ ही इसकी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, लेकिन जो इसके नीचे भी जो पॉइंट वेट होगा उसके साथ ही इसकी डिफ्लेक्शन होगी। तो आप लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ, or you can say deflection of point B, this is equal to delta L AB due to the weight of AB plus delta LAB due to the weight of BC, right? ये क्लियर हो गया पॉइंट कि डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए क्या होगा, चेंज इन लेंथ ड्यू टू द वेट AB एंड द चेंज इन लेंथ ड्यू टू द वेट ऑफ BC, राइट? तो आप इसमें इक्वेशंस पुट कर लीजिए। ये क्या इक्वेशन थी, WL अपॉन 2AE, सेल्फ वेट की जाएगी AB और WL अपॉन 2AB, है ना, 2AE। दिस इज ऑल्सो AB, है ना, ये आपका आ गया WL अपॉन 2AE, वेट ड्यू टू द वेट AB एंड WL अपॉन AB ड्यू टू द वेट BC, ये आ गया वेट ऑफ BC, ठीक है, पुट कर लीजिए वैल्यू। सो W क्या होगा, AB का वेट कितना है 20, L कितना होगा 8 मीटर है तो 8000, टू एरिया क्या है 8 मीटर स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने दो, एंड व्हाट इज योर E, व्हाट इज योर E, इसमें आई थिंक स्टील का था ये, दिस इज 200 इंटू 10⁻³ तो ये भी सेम ही आएगा। ये दूसरा वेट अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा ना पॉइंट लोड, तो दिस इज W इंटू 8000 टू एरिया 8 अपॉन 200 इंटू 10⁻³, राइट? सो दिस इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट कर लीजिए आप, दिस इज हाउ मच, जस्ट कैलकुलेट इट। Actually, this I have taken, this is a point load, तो ये आएगा WL upon AE, है ना, this is not 2E, this is WL upon AE, this is a point load, this I have taken the point load here, तो point load के ऊपर में क्या होता है आपका, ये होता है ना point load में PL upon AE, this is for the point load, और जो आपका सर्फ वेट वाला है जैसे WL upon 2AE, राइट, तो point load था तो ये आ गया इसमें, इसको कैलकुलेट करो कितना, हाउ मच इट इज, .15 mm, this is 0. This is equal to 0.15 mm, right?
So this is your deflection at point B. ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया? अगेन आई रिपीट इट. इसमें क्या है देखिए, इसको बड़े ध्यान से सुनिए. मैंने जब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालना था, राइट, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी किस तरीके से निकालेंगे. समटाइम्स वी फील दैट हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन दिस इज अ फिक्स एंड बी के ऊपर निकालने के लिए चेंज इन लेंथ ऑफ दिस ए बी ये कर लेंगे, राइट, चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी एंड वी विल गेट दैट पॉइंट. बट द प्रॉब्लम इज कि डिफ्लेक्शन जो आपका पॉइंट बी के ऊपर होगा, ये ध्यान से सुनना है, ये मैंने लिखा भी है स्पेशली. डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, दिस इज ड्यू टू द weight of this wall AB and also the weight below the point B. So weight point below the point B, that is the weight of this BC. जो weight due to the point B होगा, इसको हम assume करेंगे this is the point load. This is the point load is acting on this. तो इसलिए इसका जो इक्वेशन बनेगा डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट B, जो आपका डिफ्लेक्शन पॉइंट बी का होगा, ये जो बार आपकी ए बी हम लेंगे, चेंज इन लेंथ जो ए बी लेंगे, ये दो तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, चेंज होगी. एक तो ड्यू टू द वेट ऑफ ए बी होगा और ड्यू टू द वेट ऑफ बी सी होगा, जो हम पॉइंट लोड ले रहे हैं. यस, जो हम पॉइंट लोड ले रहे हैं, जो आपका वेट पॉइंट बी के नीचे बी सी पोर्शन का था, दैट आई एम टेकिंग पॉइंट लोड हियर. तो ये दोनों का जो वेट होगा उसके कारण ये पॉइंट बी आपका डिफ्लेक्ट होगा. तो इसलिए जो ड्यू टू द वेट ए बी, दैट इज सेल्फ वेट, इसके लिए तो फॉर्मूला ये आ गया. और जो ये जो पॉइंट 20 न्यूटन जो है, अगर इसका टोटल वेट आपका 40 न्यूटन था, तो अगर दिस इज योर 20 न्यूटन, सो इट मींस दिस इज 20 न्यूटन, बट दिस 20 न्यूटन इज नॉट द सेल्फ वेट. दिस 20 न्यूटन इज द कौन सा वेट होगा आपका, दैट इज अ पॉइंट लोड. तो इसलिए ये इक्वेशन आएगी WL अपॉन AE और PL अपॉन AE जो हम लिखते हैं, राइट, PL अपॉन AE, राइट. दिस इज द इक्वेशन. इसमें आपने पुट किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.15 mm. अच्छा, सेकंड हमने क्या निकालना है, स्ट्रेस एट पॉइंट A, है ना. स्ट्रेस एट पॉइंट A, तो बहुत बात सारा निकल गया आपका. स्ट्रेस एट पॉइंट A, so stress at point A, that is sigma is equal to P upon A, right. Sigma is equal to P upon A. तो A के ऊपर हमें स्ट्रेस निकालना है, तो मुझे बताइए जहां पे जो आपका इंटरनल फोर्स होगा P, that is equal to 40 न्यूटन, जो इंटरनल फोर्स होगा वेट बिलो दिस सेक्शन, वेट बिलो द पॉइंट ए. तो इसमें P कितना आपका मीन्स कितना आएगा, टोटल वेट जो जितना वेट है इसका 40 डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर ए मीन्स 8, तो दिस इज 5 मेगा पास्कल. यू अंडरस्टैंड दिस इज योर स्ट्रेस एट पॉइंट ए. और दूसरा शायद निकाला स्ट्रेस एट पॉइंट बी, है ना. स्ट्रेस एट पॉइंट बी ये कितना होगा, 20, बी के ऊपर कितना है 20 है, डिवाइडेड बाय 8, दिस इज इक्वल टू 2.5 मेगा पास्कल. सो ये आपका स्ट्रेस एट पॉइंट ए एंड स्ट्रेस एट पॉइंट बी. सो दिस इज द लेक्चर टुडे व्हिच आई हैव टेकन, दैट इज the lecture of the self weight of the prismatic bar as well as the conical bar, and here we have discussed the change in length of the prismatic bar due to the self weight, stress of the prismatic bar due to the self weight, as well as the change in length and the stress of the conical bar also. Here I have taken one numerical, right. So now I think the concept of this topic is very much clear to you. I just try to explain you in a very you can say in a good way so that you can understand the things. Rest of the problems are the very you can say very easy for you to calculate. So for your practice, go for the more practical problems from your books and other things, and it means you will feel very easy to understand that. So this is all today. This is my lecture on the self weight, and tomorrow I will take the next topic, new topic, next class of the axial loaded member. Thank you very much.